हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नाउ as we are heading towards the May 23 examinations, that is May November 23 examinations, we should be very much clear about if there are any amendments or changes that are applicable for our attempt. As we all know that for every May attempt, the new Finance Act becomes applicable. So for the upcoming May and November 23 examinations, the amendments made by the Budget 22, that is by the Finance Act 22, would be applicable for your examination. So we are here in this particular video going to discuss all the amendments that have been made by the particular or the relevant Finance Act so that you can get a glimpse of all the changes that have occurred. So if students, you have already completed the syllabus and you just want to know that what are the highlights or what are the amendments, because what happens is that this is what I always say in all of my videos, that amendments are of utmost importance for the examination. वो नई नई चीजें होती हैं, लेटेस्ट होती हैं, अपडेशंस होते हैं एग्जामिनेशन में, उस पर से क्वेश्चंस बनना बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन द अमेंडमेंट पार्ट्स. So in this video I'm going to discuss specifically the amendments that are relevant for income tax, and these topics would be applicable for both CA Inter and CA Final. The amendments that are only for the syllabus applicable to CA Final I would be discussing in another part. So in this video we'll be discussing both CA Inter and CA Final. Now, first of all, we'll go chapter wise as the chapters are arranged in the module. So that would be easy for you to assimilate it with your module. And if you have already given an attempt in the last one, so you already have a modules in which you must have done some marks or underline and everything. You can mark it down there itself. तो आपको तुरंत के तुरंत उसी बुक में चेंजेस मिल जाएंगे, है ना. बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी बिग इशू कि हम अगर एक बार पढ़ चुके हैं, हमारी बुक्स में ऑलरेडी मार्किंग है, तो हम हर बार नई मॉड्यूल भी नहीं खरीद सकते हैं, है ना. सो इट इज ऑल्सो अ थिंग दैट हम बुक्स में हाईलाइट कर चुके हैं, वहीं पर हम एक स्टार कर करके या कुछ जगह पर कि यहाँ पर चेंज हुआ है. सो इट विल बी a thing to remember when you are doing the final revision before your examination. Okay, chaliye. First of all, the rates of tax. So not much changes in the rates of tax. So let us see. In case of individual HUF, AOP, BOI, जो हमारे normal basic slabs वगैरह होते हैं, basic exemption limit है, इन सब में कोई changes नहीं है. It is the same as applicable for assessment year 22-23. For us, the applicable assessment year would be assessment year 23-24, है ना. That is Finance Act 22. चलिए. Firm, LLP, local authority, cooperative society, rate of 30%. So it will again be same. Likewise, the slab rates applicable will also remain unchanged. Company, in case of company, you have to keep in mind the turnover. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है for the previous year 2021 should be less than or equal to 400 crore. बाकी limit same है. Again, alternative regime and all these things are same. Now, where is the thing which is to be kept in mind is surcharge. Okay, surcharge में again rates में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है. आप सब लोगों ने सरचार्ज के रेट्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. सो आप सब लोगों ने सरचार्ज में पढ़ा होगा दैट इंडिविजुअल्स HUF, इनकी केस में हम 4 रेट्स पढ़ते थे, है ना. 10%, 15%, 25% एंड 37% का सरचार्ज है. But in some cases, the surcharge of on in these particular assessees will be maximum up to 15%, है ना. हमने ये पढ़ा हुआ है. In some incomes, the a particular rate of surcharge should not exceed 15%. उन cases में अब एक नई चीज ऐड हो गई है 112. ओके, सो 111A और 112A तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आपके पास जो पुराने नोट्स बने हुए होंगे उसमें 111A और 112A के बारे में तो हमेशा बात होती है. नाउ दे हैव आल्सो इंसर्टेड सेक्शन 112, मतलब एक तरीके से जो हमारे कैपिटल गेन के स्पेशल टैक्सेशन रेट्स हैं, कैपिटल गेन के जो हमारे स्पेशल टैक्सेशन रेट्स हैं, वो स्पेशल टैक्सेशन रेट्स पर
सेम रूल एप्लीकेबल होगा वेदर इट इज 111A 112 और 112A और सेक्शन 115 BAC। सो देखिए क्या बोला गया है, वन अंडर सेक्शन 112 11A 112 एंड 112A तो 10% में तो कोई चेंज नहीं है, अगेन 15 में भी कोई चेंज नहीं है। मूविंग ऑन टू द रेट्स ऑफ 25 एंड 37%। तो यहाँ जहां पर अभी तक से हम 111 या 112A रखते थे, वहां पर अब से 112 भी है, इन पर इस पर भी 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, दिस इज द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। मूविंग ऑन to the next change, that is a very important change. AOP consisting of only companies as members. Now there are some AOPs, that is association of persons. As we talk association of persons, and persons की definition में सब कुछ आ जाता है, individual, HUF, etc etc etc. So AOP में company भी member हो सकती है, correct? So if an AOP, if there is an AOP for example in which 3 companies are members, okay, there are 3 companies which are members, then in case of an AOP consisting of only companies as members whose total income is more than 50 lakhs but is less than or equal to 1 crore, that is it falls in the first slab where the total income is exceeds 50 lakhs but does not exceed 1 crore, surcharge is payable at the rate of 10% applying the slab rates or 111A or 112A or 112 or 112A. Okay, next, in case of AOP whose income is more than 1 crore, where the income exceeds 1 crore, surcharge is applicable at the rate of 15% computing applying the slab rates और सेक्शन 111A और 112 और 112A। सो बेसिकली फर्क क्या पड़ गया, देखो अगर कोई एओपी है, नॉर्मली क्या होता था जब हम कंपनीज की सरचार्ज की रेट देखेंगे तो उसमें 2 स्लैब्स होते थे, एक है ना हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के अलग अलग। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द अमेंडमेंट पार्ट। अब इन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई एओपी है जिसमें सिर्फ कंपनीज मेंबर है तो उसमें 25 और वो सब चीज हटा दी, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है कि जो भी हमारा इनकम है, जो भी हमारा टैक्स बनेगा उसका 10% या फिर या फिर 15% डिपेंडिंग ऑन योर income. Okay, then there is no rule of 25 and 37%. No change in firm LLP. Cooperative society, in case of cooperative society other than cooperative society opting for 115 BAD, because again that is a alternative regime, so that is a altogether different concept, where the total income is more than 1 crore but it is less than or equal to 10 crore, where the total income exceeds 1 crore but it does not exceed 10 crore, surcharge will be applicable at the rate of 7%. And again, if it exceeds 10 crore, then it will be applicable at the rate of 12%. That is like domestic companies. Okay. In case of cooperative society opting for 115 BAD, तो 10% का एक सरचार्ज लेवी होगा इस पर्टिकुलर केस में. And obviously, there is no threshold and no marginal relief. This is to be kept in mind. Domestic company and foreign company is अगेन द सेम. सो यू हैव टू कीप इन माइंड अगेन. अब अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है. पहली चीज हमारा जो 112A 111A के साथ साथ उन्होंने 112 भी ऐड कर दिया है कि उसके इनकम पर भी अब मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगेगा. तो ये चीज आपके जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द AOP if all the members are companies, then you have to keep in mind the next condition. Cash credits, section 68. कैश क्रेडिट्स हम सब लोगों ने पढ़े हुए हैं. व्हाट आर द लाइक डिफरेंट केसेस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसमें कि एक चीज होती है हमारी कैश क्रेडिट. सो व्हेन any sum is found credited in the books of accounts and the assessee offers no explanation or the explanation offers is not find satisfactory, then the sum so credited is charged as the income. Unexplained loan or borrowing, where the sum so credited consists of loan or borrowing or any such amount, then any explanation offered by the assessee in his books such sum is credited would not be deemed satisfactory. अब उन्होंने एक रूल बना दिया, जैसे अभी तक क्या बता दिया था, या आप कह सकते हो रूल की जगह आप और क्लियर अगर हम वर्ड की बात करें तो कंडीशन बता दी. अभी तक उन्होंने क्या बोला था कि भैया ठीक है, अगर हमको सेटिस्फैक्टरी लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ऐसा ऐसा होगा. सो द थिंग वाज कि मतलब हर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड कर सकता था दैट किस चीज को सेटिस्फैक्टरी मानना है, किसको नहीं मानना है. करेक्ट. नाउ व्हाट दे हैव डन कि वी विल नॉट consider it as satisfactory unless
अगर ये कंडीशंस हमको फुलफिल होती है तो ही हम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, आप मानेंगे आपका, अदरवाइज हम आपके एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फैक्टरी नहीं मानेंगे। सो क्या बोला है, अनलेस द पर्सन इन हुज नेम such credit is recorded in the books also offers an explanation about the nature and source। मतलब कि सिंपल सी बात है, सपोज मैंने आपसे लोन लिया तो मेरी बैलेंस शीट में आपका नाम दिख रहा है, से फॉर एग्जांपल है ना, एनी XYZ नेम, और आप मुझसे पूछा तो मैंने तो बता दिया कि मैंने इस चीज के लिए लोन लिया था, मेरे घर में फंक्शन था फॉर एग्जांपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी। अब ये चीज कंफर्म करने के लिए आपसे भी इंक्वायरी करी जा सकती है, और आपने भी अगर वही चीज कंफर्म करी तो डिपार्टमेंट को यकीन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से इन ऑल ऑफ माय वीडियोस, ऑल ऑफ माय लेक्चर्स, एंड कंडीशन कहाँ है और कंडीशन कहाँ है। इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर सच एक्सप्लेनेशन हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी। मतलब सामने वाले ने जो बोला वो पूछा जाएगा, और अगर सब चीजें सेटिस्फैक्टरी है तो ही आपके एक्सप्लेनेशन को कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, again any explanation offered by closely held company in respect of any sum credited as share application money, share capital, share premium in the accounts would not be deemed unless the person being a resident in whose name such credit is recorded also explains। वही वाली बात हो गई, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कैपिटल के थोड़े और ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, कि वो कैपिटल हो, SPR हो, जो भी हो, अगर क्रेडिट की साइड पर दिख रहा है, कैपिटल के नाम पर दिख रहा है, और जिस भी व्यक्ति ने कैपिटल लगाई है उससे भी जाकर के पूछा जा सकता है। अगर कंपनी अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इसके ऊपर आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान करके, आपका जो हायर रेट ऑफ इनकम होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है ना, वो वाले रेट से इनकम टैक्स लगा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म, सो अगेन फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म part of total income, luckily there are no changes in the residential state. There have been so many amendments in the past, like you can say 1 and 2 years in residential status, especially in the residential status of individuals. So in this particular attempt, thankfully there are no major changes in that particular portion. Moving on to incomes which do not form part of total income, that is the exempt incomes. Not much thing to be that is to be changed. Restriction and allowability of expenditure, we all know that any expenditure which is done for earning any exempt income is not allowed. तो उसी पर थोड़ा सा उन्होंने क्लेरिफाई दिया है। एज पर सेक्शन 14A, notwithstanding anything to the contrary, expenditure incurred in relation to exempt income is not allowed as deduction. The assessing officer is empowered to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income. The rule lays down the method for determining the amount of expenditure. अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा amount of expenditure है जो कि इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है। If the assessing officer having regard to the accounts is not satisfied with the correctness or claim made by the assessee in relation to exempt income, he shall determine the amount of expenditure in the manner provided. So यहाँ पर एक मैनर प्रोवाइड किया गया है। एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट shall be aggregate of the following: amount of expenditure directly relating to income which does not form part of total income, an amount equal to 1% of the annual average of the monthly averages of the opening and closing balances, income which does not form part, however the amount referred shall not exceed the total expenditure claimed by the assessee. So basically ये मेथड दिया हुआ है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया है, देखो सिंपल सी बात है, अगर वो इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे तो उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया है तो वो एक्सपेंस को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका उन्होंने यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा है, मैनर ऑफ कैलकुलेशन, है ना, दैट इज something which has been provided in this particular section. Expenditure incurred during a previous year in relation to exempt income would be disallowed while computing the total income by applying the provisions of 14A, even though such exempt income has not accrued or arisen or received during the said previous year. Getting the point? So अगर कोई expenditure incur हुआ है और आपने claim किया है, उस income का कोई अक्रूवल होना जरूरी नहीं है, आपको वो एक्सपेंस डिसअलाउ करना पड़ेगा। सो देयर आर नॉट मेजर चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, सो दिस हैज बीन चेंज्ड। नाउ मूविंग ऑन टू सैलरीज, yes,
there is some kind of amendments in salaries that mostly relates to the changes that have been brought in due to COVID. So most probably these would be some kind of temporary changes, maybe matlab in the coming period they may remove all these things, but let us see. So these are the provisions relating to the perquisites which are exempt. We all know perquisites which are exempt in hands of all the employees. उसमें एक केस होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, हम सबने पढ़ा है वो सेक्शन, है ना, कि मेडिकल ट्रीटमेंट कब एग्जेम्प्ट होता है, कब टैक्सेबल होता है. सो उसमें एक पॉइंट हम लोगों को और बताया गया है कि जो रीइंबर्समेंट वाला पॉइंट होता था कि एक्सपेंडिचर रीइंबर्स कर दिया, मतलब जैसे मैंने किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया और सरकार, मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने मेरा पूरा खर्चा भर दिया, तो मेरे को रीइंबर्समेंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर मेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ होगा, या फिर मुझे मेरा जिस डिसीज का ट्रीटमेंट हुआ है वो कोई प्रिस्क्राइब डिसीज है, तो फिर किसी भी होटल में किसी भी हॉस्पिटल में सॉरी ट्रीटमेंट हुआ हो, reimbursement would be exempt. Moving on to the next point which has been added is relating to COVID-19. In respect of any illness relating to COVID-19, accordingly, central government has notified specified following conditions. Employee has to submit some documents, proof देना पड़ेगा कि हाँ पॉजिटिव हुए थे, कोविड पॉजिटिव का केस था, तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब एक्सपेंडिचर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिम्बर्स हो जाएगा. COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय और मेडिकल रिपोर्ट टू बी COVID-19 पॉजिटिव थ्रू इन्वेस्टिगेशंस in a hospital or an inpatient facility by a treating physician of a person so admitted. All necessary documents जो भी सारे आपके necessary documents हुए हैं, COVID suffered within 6 months from the date of being determined as positive, and a certificate of all the expenditure incurred on the treatment of COVID-19 or illness of an employee or the member of his family. तो COVID-19 का ट्रीटमेंट हुआ है अगर, तो भी आपको इस सब का रिइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा. यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली उन्होंने वो नहीं बोला है कि कहाँ पर आपका व्यक्ति जो है वो एडमिट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट में हो ये जरूरी नहीं है ना, तो वहां पर उन्होंने अपने को COVID-19 का भी अब से अलाउंस दे दिया है. दैट इज द मेन थिंग विच हैज बीन added. Moving on to PGBP, again I have released a revision lecture for PGBP, as you all know, that is available. Revision lecture में मैंने already ये सारे points को भी incorporate कर दिया है, but again क्योंकि वो पूरे chapter के बीच में है तो अलग से भी ले लेंगे. That would be very easy for you to just correlate कि हाँ चले ये changes हुए हैं. Profits and gains of business and profession, deduction under section 35, that is scientific research. Scientific research not allowable to donor if association institution fails to file statement of donations. Now अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अगर जो इंस्टीट्यूशन है उसने अगर स्टेटमेंट वगैरह जो उसको फाइल करना है, जो उसका कंप्लायंस है रिलेटिंग टू द डोनेशंस, अगर फाइल नहीं किया तो जो डोनर है उसका डिडक्शन क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड. क्योंकि देखो हम डोनेशन कर देते हैं, अब हम लोग तो डिडक्शन ले लेते हैं, तो होता क्या है कि जो असेसी है उसको तो डिडक्शन मिल जा रहा है, लेकिन कंप्लायंस सामने वाले के पार्ट पर नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर सामने वाले को मतलब जिसने पैसा दिया उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा. 100% of the contribution is for such institutions is allowed as deduction. We all know very well कि अगर हमने ऐसे किसी institutions को अगर हमने रिसर्च के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई पेमेंट किया है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो हमारा सेक्शन 35 में हमें डिडक्शन अलाउड होता है ना. फॉर दिस पर्पस 35(1)(a) जो है वो उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक लायबिलिटी लगाता है कि आपको पूरा डेटा हमें डिलीवर करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने कितना डोनेशन दिया है. ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स आर टू बी सबमिटेड टू द पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. द डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू डोनेशन टू एनी सच इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूशन would not be allowed unless such research association university complies with the requirements stipulated under section 35(1)(a. तो अब हम एज अ डोनर हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा. पता पड़ा हमने पैसे दे दिए और हमको डिडक्शन भी नहीं मिल रहा है, गेटिंग द पॉइंट. तो एक तरीके से धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, सब चीजों की डबल क्रॉस चेकिंग होना जरूरी है कि हमने इधर से डिडक्शन ले लिया उधर सबमिट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा. वहां पर भी डेटा उनके पास भी सबमिट होना जरूरी है ना. चलिए मूविंग ऑन to section 37. Now what is section 37? I hope you all remember.
दिस इज द रेसिड्यूरी सेक्शन ऑफ डिडक्शंस। जो भी सारे डिडक्शंस जो 30 से लेके 36 तक आपके कंसिडर नहीं हो रहे हैं, और अगर वो जेन्युइन है, वो 37 की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, दैट आर द बेसिक कंडीशंस आर कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं चलेगा, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 37 में जो कंडीशंस हैं, अगर उन सारी कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हो और वो एक्सपेंडिचर 30 से लेके 36 तक कवर नहीं हुआ है, देन you can claim that as reduction under section 37. However, there are some expenditures which are prohibited. That is, if any expense which is for a purpose which is an offense or which is prohibited by law, तो ऐसा कोई खर्चा आपको अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मतलब कोई पेमेंट आपने किया है जो कि किसी लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, तो 37 में उसका अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसी पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है, तो वो समझना है हमें कि क्या बोला गया है। द एक्सप्रेशन एक्सपेंडिचर incurred by an assessee which is an offense or which is prohibited by law would include and would deemed to have always included। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीम्ड टू हैव बीन ऑलवेज इंक्लूडेड मतलब कि ऐसा मान लिया जाएगा कि ये जो सारी चीजें यहाँ बोली गई हैं, ये हमेशा से इस सेक्शन का पार्ट थी। वो डीम्ड टू हैव बी ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, क्या बताया, क्या बोला है? फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ for the time being in force in India or outside India, or which is prohibited by any law for time being in force in India or outside India। हो सकता है वो लॉ अब बन के खत्म हो चुका है, हो सकता है वो लॉ इंडिया के बाहर का है, लेकिन अगर कभी भी कोई भी लॉ में जो टेम्पररीली या परमानेंट लॉ अभी भी एप्लीकेबल है, इंडिया में है, बाहर है, उस लॉ के अंडर अगर वो एक ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्विजिट in whatever form to a person whether or not carrying on a business or exercising a profession, whether or not जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law, rule or regulation for the time being governing the conduct of such person। आप लोगों को पता होगा कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर कुछ एथिक्स लगाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स and many there are many regulatory bodies which provide ethics on their on their employees or their workers or any person covered under that regulatory body or regulatory act। so they provide certain rules and regulations कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, ये आपके एथिक्स के बाहर है। अगर मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सपोज कहीं पर से फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर लेने जा रही हूँ या कोई सेमिनार देने जा रही हूँ या कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रही हूँ, व्हाटएवर, any kind of benefit which I am receiving from that particular person is against the code of conduct of ICAI। मतलब ICAI ने मुझे बोला है कि मैडम आप सीए हो, आप ये नहीं कर सकते हो, एथिकली हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। और अगर मैं ऐसा कोई बेनिफिट रिसीव कर रही हूँ, सामने वाले व्यक्ति को उसका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। बात समझ में आई? तो आप अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो जो कि उसको उसके रूल्स और कंडक्ट के बेसिस पर अलाउड नहीं है, तो आपका डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा। और टू कंपाउंड एन ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस है जो इंडिया में इंडिया के बाहर है, उसको कंपाउंडिंग करने के लिए पेमेंट किया है, तो भी अलाउड नहीं रहेगा। दीज पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हम लोगों को अब से ये और एक चीज ध्यान रखनी है बिजनेसेस को कि अगर कोई ऐसा खर्चा हो जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। Disallowance of income tax, again this I have discussed in the revision lecture as well। हम लोग सबको पता है सेक्शन 40A में हमारा इनकम टैक्स का पेमेंट जो है वो डिसअलाउ होता है ना। मतलब हमने इनकम टैक्स अगर पे किया है तो उसका डिडक्शन हम हमारे पीजीबीपी के हेड में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, टैक्स में एक कंफ्यूजन था हमेशा से कि भैया टैक्स में सरचार्ज और सेस का क्या। जब आप बात करते हो सिर्फ वर्ड टैक्स की, तो टैक्स
तो एक वो वाला रेट हो गया। जैसे इंडिविजुअल्स में अगर मैं बात करूं तो स्लैब रेट लगा के जो निकाला वो टैक्स है ना, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाला, और फिर सरचार्ज और फिर सेस। तो जब हम बोलते हैं कि टैक्स इज नॉट टू बी डिडक्टेड, तो सरचार्ज और सेस का क्या? तो लोग क्या कर सकते थे, क्लैरिटी ना होने की वजह से बोलेंगे भैया सिर्फ टैक्स बोला है, तुम टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम सरचार्ज और सेस को तो एक्सपेंस मान करके बिजनेस में से डिडक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अलाउड, उन्होंने बोल दिया। और फिर से वही बोला है कि वुड बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज बीन इंक्लूडेड। हम मानेंगे कि जब से ये सेक्शन आया है तब से ये इसमें इंक्लूडेड रहा था, ठीक है, उस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। So these are the major changes in PGBP. Moving on to the next amendment, that is 43B. 43B is a section which states that there are certain deductions which will be allowed only on actual payment. There are two very small changes in this particular section. List में तो कोई change नहीं है, ठीक है, list वैसी की वैसी ही है। क्या बोला है इन्होंने? कन्वर्जन वाला एक पॉइंट हुआ करता था पहले भी, कि एक एक्सप्लेनेशन था 43B का जो बोलता था कि अगर जो बैंक है उसने आपके जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसको नए लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कन्वर्जन पेमेंट नहीं माना जाएगा। एक्चुअली जब आप इस लोन को रीपे करोगे, एक्चुअली कैश आउटफ्लो होगा, तभी आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसी तरीके से अगर उस इंटरेस्ट को बोरोइंग या डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया है, अगर जैसे कंपनी का केस है और इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है उसको उसके नाम पर आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज पेमेंट। बात वही हो गई घूम फिर के कि एक लाइबिलिटी इधर से कान पकड़ो इधर से कान, वैसी वाली बात होती है। एक लाइबिलिटी हटा के बुक्स में दूसरी लाइबिलिटी आई है, अभी एक्चुअली वो लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई है, तो अभी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड, तो उसमें आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। और इसी में एक और क्लैरिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है 43B में, कि अगर ये अगेन आई हैव डिस्कस दिस एट द टाइम ऑफ योर रिविजन लेक्चर, दैट इफ देयर इज एनी पेमेंट which is done by the employer for like your welfare funds, PF or ESIC वगैरह के, तो any payment which is done on behalf of the employee is to be paid within the due date of that relevant act and not within the due date of the 139(1), है ना, तो वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। Moving on to capital gains, so the new cost inflation index has been prescribed now. So for the upcoming examinations, you would be solving the questions using the cost inflation index 331. That is for the previous year 22-23, or you can say assessment year 23-24. Chaliye. There is a very small change in the meaning of slum sale. So the slum sale, they have also added a term in the definition of slum sale: assets, lump sum consideration without values being assigned to the individual assets in such transfer. This word has been added, कि यहाँ पर उन्होंने उस वर्ड को अब क्या बोल दिया है, ट्रांसफर। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, क्योंकि ट्रांसफर में सब चीजें आ जाती हैं। 247 में हम ट्रांसफर की डेफिनेशन देखते ही हैं, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एवरीथिंग कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। सो वहां पर उन्होंने वो वर्ड अब से स्लम सेल के लिए भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर सोर्सेस, अगेन अदर सोर्सेस में भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो देर आर नॉट लाइक कॉन्सेप्चुअली बहुत कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो वो हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ 56-10। 56-10 सेक्शन हम सबको पता है क्या है, गिफ्ट प्रोविजंस। कब गिफ्ट मिला तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, है ना, वो हमारी यहाँ पर बात होती है। सो गिफ्ट प्रोविजंस हम लोगों को समझना है। 56-10 में उन्होंने अगेन कोविड के केसेस में कुछ कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट किया है। तो क्या बोला गया है, any sum of money, value of property received in following circumstances would be not chargeable to tax: individual from any person in respect of expenditure actually incurred by him on treatment of his self or family member for illness subject to the conditions by CG। जैसे उस टाइम पर क्या हुआ था कोविड में, बहुत it was not a good time for many of the families. So what was done that say for example employer ने अपने employees को compensation दे दिया, है ना, जैसे किसी के बहुत ही अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई फैमिली में, तो एम्प्लॉयर ने आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न एक 1 लाख 2 लाख का कंपनसेशन दे दिया, है ना, वाइफ को, से फॉर एग्जांपल, या वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड को, या बच्चों की डेथ हो गई, जो भी रीजन हुआ, या नॉट नेसेसरली डेथ, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑब्लाइज्ड नहीं थे, वो कोई
इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयर हो सकता है या कोई भी फ्रेंड वगैरह ने दे दिया है, जो भी हुआ है, तो उन केसेस में कब वो टैक्सेबल होगा और कब वो टैक्सेबल नहीं होगा वो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। तो एन इंडिविजुअल जिसने रिसीव किया है, अब अगेन क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है, इंडिविजुअल के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है सब कुछ हुआ है, all necessary documents. The details of the amounts so received in any financial year has to be furnished in a form number 1 to the income tax department within 9 months from the end of such financial year or 31st of December, whichever is later. तो जिस पर्टिकुलर साल के लिए आपको पैसा मिला है, ठीक है, जिस ईयर के लिए, कोविड-19 में तो 2 वेव्स आ गई, तो उन्होंने जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको पैसा मिला है उस साल से 9 महीने के अंदर अंदर या 31/12/2022 विच एवर इज लेटर तक आपको ये डिटेल सबमिट करनी है। मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका क्या बोला है कि किसी भी पर्सन से आपने रिसीव किया है तो चलेगा। अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, है ना, डिसीज्ड पर्सन की केस में उन्होंने बोला है मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम एम्प्लॉयर without limit or from any other person to the extent that such sum or aggregate of such sum is less than or equal to 10 lakhs where the cause of death is related to COVID and the payment is received within 12 months of the date of death and the other conditions. Then other conditions में फिर से वही चीज है, death should be within 6 months from the date of testing COVID positive. Family member has to keep a record of the documents, कौन से कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें रीजन ये लिखा होना जरूरी है कि कोविड-19 से ही डेथ हुई है। अगेन डिटेल्स ऑफ सच अमाउंट्स रिसीव्ड हैज टू बी फर्निश्ड, यहाँ पर फॉर्म दूसरा है, टू द असेसिंग ऑफिसर विदिन 9 मंथ्स और 31st ऑफ दिसंबर विच एवर इज लेटर। फैमिली यहाँ पर कौन कौन है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड ब्रदर्स, पेरेंट्स, सिस्टर्स, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो ऐसे किसी व्यक्ति के केस में अगर कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, कुछ केसेस में उन्होंने कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी हैं, कुछ केसेस में कंडीशंस नहीं है, कुछ केसेस में मॉनेटरी लिमिट है, कुछ में नहीं है, उन चीजों का हमें खासा ध्यान रखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिडक्शन ऑफ टोटल, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। So moving on to the next topic, that is deductions from gross total income. Amendments in this particular topic, again not major or not much amendments that have been given in this particular chapter. अगर हम बात करें अभी तक ओवरऑल, तो हमारे सिलेबस में ऐसे कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस या बहुत कॉन्सेप्चुअल चेंजेस नहीं आए हैं। More of the changes are in the TDS chapter, which we would be discussing in the coming part. So let us discuss about deductions from gross total income. So the first change that has been done under the head deductions from gross total income is in the section 80CCD. That is, we all know NPS. Investment on NPS gives you certain deductions. Employer contribution, employee contribution, दोनों के कुछ कुछ deductions allowed होते हैं। 80CCD 1(1)(b) जो है वो हमारे employee contribution की बात करता है। 80CCD 2 जो है वो हमारे employer contribution की बात करता है। तो CCD 2 में आप सबको याद होगा एक प्रोविजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो 14% ऑफ सैलरी तक अलाउड होता है, इन अदर केसेस इट इज 10% ऑफ सैलरी। अब उन्होंने ये कर लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन अलाउड होगा, अदर देन दैट 10% ऑफ सैलरी अलाउड होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर एम्प्लॉयर टू द सेड अकाउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन of the company. The entire employer's contribution, however, deduction would be restricted to 14% in case of central government or state government employee. In case of any other employee, it would be 10% of salary. So this we have already discussed in the regular sections, in the regular sessions, but we had discussed about that only CG के employees को होता है, पहले SG, पहले जब था ओरिजिनली जब ये सेक्शन आया था तब सबको 10% अलाउड होता था, फिर उन्होंने बीच में अमेंडमेंट ला करके सीजी को 14% कर दिया, अब इन्होंने सीजी एसजी दोनों को 14% कर दिया है और बाकी सबको 10%। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में सबको 14% पे भी ले आया जाए, लेट्स सी, मे बी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड 80DD। तो यहाँ पर क्या बोला है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड में 80DD में
What is the amendment? Let us discuss. We all know what is the particular section of 80DD. 80DD is that if there is a person who is disabled and he is dependent on you, covered under the particular definition, then you can claim deduction of a certain amount. That is a flat deduction. 80DD में flat deduction होता है. अगर आप कोई डिपेंडेंट व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको उसके रिस्पेक्ट में अपनी इनकम में से डिडक्शन मिलेगा, है ना. ये सेक्शन हम सब लोगों ने पढ़ा है. अब इसमें क्या क्या बोला है देखें. द थिंग्स विच हैव टू बी discussed as per this amendment. The scheme should provide for payment of annuity or a lump sum amount for the benefit of dependent in the event of death of the individual in whose name the subscription was made, or on attaining the age of 60 years by such individual and the payment to such scheme has been discontinued. क्या होता है, एन्युटी स्कीम्स बहुत सारे तरीकों की होती है. कुछ डेथ पे आपको रिलीज करी जाती हैं, कुछ ऐसी होती है कि जैसे ही आपका 60 इयर्स ऑफ एज अटेन होगा, आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया उस स्कीम में, तो आपको सारा का सारा अमाउंट जो है वो मिल गया. तो सपोज कोई व्यक्ति है जो कि डिपेंडेंट है आपके ऊपर, डिसेबल्ड है, इसके लिए आपने कोई एन्युटी लेकर के रखी थी जिसमें आप सब्सक्रिप्शन दे रहे थे, ठीक है. अब क्या हुआ कि वो या तो इस व्यक्ति की डेथ हुई, है ना. क्या बोला है देखो कि फॉर द डिपेंडेंट in the event of death of the individual, the scheme should provide for payment of annuity for the benefit of a dependent in being a person with disability in the event of death of the individual. तो जो व्यक्ति है जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है उसकी डेथ हो गई, है ना. तो अब ये जो व्यक्ति है इसको ये सारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अब ये तो डिपेंडेंट था उस व्यक्ति के ऊपर, तो ये सारा पैसा मिल जाएगा. ऐसी एन्युटी स्कीम अलाउड है. और या फिर उसी के साथ साथ एक ऐसी एन्युटी स्कीम हो कि ऑन अटेनिंग age of 60 years or more of such individual and the payment or deposit to such scheme has been discontinued, and the assessee must nominate either the dependent, being the person with disability, or any other person to receive the payment on his behalf or the benefit of the डिपेंडेंट. तो मतलब क्या हुआ कि या तो उस व्यक्ति की डेथ हो गई इसलिए, या फिर वो व्यक्ति 60 इयर्स का हो गया और अब उस एन्युटी का पेमेंट बंद हो गया, क्योंकि अब वो खुद भी 60 अटेन कर चुका है, तो जो पैसा मिलेगा, ऐसी एन्युटी स्कीम भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अलाउड रहेगी. ठीक है. आगे, if the dependent being a person with disability predeceases the individual, है ना, in whose name subscription was made, then the amount paid or deposited would be chargeable to tax in the hands of the assessee in the previous year in which such amount is received by him. However, such deeming provision would not apply to the amount received by the dependent being a person with disability before his death by way of annuity or lump sum amount under the scheme mentioned in 2 of B, ये जो अभी हमने बात करी थी 60 years वाली, that is when the individual attains 60 years or more and the payment to such scheme has been discontinued. ऐसे केस में taxability नहीं आएगी. लेकिन अगर प्री डिसीज का केस हो गया कि उसकी डेथ पहले हो गई है, तो फिर जो भी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. So this is to be kept in mind. Not like a major amendment, but yes, there is a change, so we should be keep this in mind. Now, deduction and collection of recovery of tax. This is an important thing. In this, there have been some important changes, so we need to focus on this quite seriously. Payment of transfer of certain immovable property other than agricultural land. हम सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. अगर प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको टीडीएस का प्रोविजन होता था 1% का, है ना. 194 आई है, हम सब लोगों ने पढ़ा है. अब अभी तक हम लोग इम्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ कहाँ पर पढ़ते आए हैं. 43 CA, 50 C, 56 to 10, है ना. इन सब जगहों पर इम्यूएबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात होती है, और सब जगहों पर उन्होंने अपने को क्या बोला है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी चेक करनी है. लेकिन अभी तक 194 IA में जो वर्ड यूज किया गया था वो कंसिडरेशन यूज किया था. इफ द कंसिडरेशन इज मोर देन 50 लाख. तो ये मैं हमेशा पहले पढ़ाते समय भी पॉइंट आउट करवाती थी कि वहां पर इन सब जगहों पर कंसिडरेशन जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन टीडीएस तभी डिडक्ट होगा अगर एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर है. ठीक है. वो प्रोविजन क्लियर था अभी तक. अब उन्होंने 194 IA में अमेंडमेंट किया है. क्या बोला है? 1% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और such sum मतलब consideration whichever is higher. ठीक है. So क्या बोला है? अब देखें, थ्रेशोल्ड लिमिट का सेक्शन देखें. The tax is not required to be deducted where the total amount of the transfer and the stamp duty value
आर बोथ लेस देन 50 lakhs, मतलब दोनों में से अगर कोई भी मोर देन और इक्वल टू 50 lakhs हो जाता है तो फिर आपके ऊपर टैक्स रिडक्शन की लायबिलिटी आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगेन देयर इज अ पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, अभी देयर इज अ चांस कि इन द कमिंग बजट दे मे मेक एन अमेंडमेंट, यू नेवर नो, नॉट एप्लीकेबल फॉर यू बट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पसेस आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि अभी यहाँ पर इन्होंने 10% वाली वो कोई सी चीज का कंसिडरेशन नहीं डाला है ना। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये तीनों सेक्शंस एक जैसे होते हैं। आपने 43 CA 50C 56 टू 10 तीनों में सेम बात बोली 10% वाली। यहाँ पर वो बात उन्होंने नहीं बोली है, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन दोनों में से जो ज्यादा है, अगर दोनों में से कोई एक भी 50 लाख या उसके ऊपर है तो टैक्स डिडक्शन की लायबिलिटी आ जाएगी। तो पहले जो केस था कि सेल्स कंसिडरेशन कम है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो टीडीएस नहीं कटता था, उससे क्या हो जाता था, वो ट्रांजेक्शन रडार के बाहर आ गया है ना, पकड़ने में नहीं आया सरकार के, क्योंकि टैक्स उस पर डिडक्ट हुआ ही नहीं। सो वो चीज अब क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद। चलिए, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एनडीएचएफ फैमिली 194I-B, हम सब जानते हैं अगेन दिस सेक्शन इज फॉर दोज जो 194I में नहीं आते हैं, है ना, इंडिविजुअल्स एचएफ जिनका टर्नओवर 1,50,00,000 के अंतर है, मतलब अदर देन इंडिविजुअल्स whose turnover or gross receipts exceed 1,50,00,000, we know this provision, right? So what they have said in this particular thing that 50,000 और मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और वो सब हम लोगों ने सेक्शन तो पढ़ रखा है, 5% का रेट ऑफ टीडीएस होता है। यहाँ पर अगेन व्हाट इज द चेंज, सो we need to understand that what they have discussed is very very important. What they have discussed is that there is a rule of time, this deduction, time of deduction, time this is to be made at the credit of such rent for the last month or the last month of tenancy if the property is vacated, again this we have already discussed। टैन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये सब हम लोग ऑलरेडी उस सेक्शन के साथ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जहां पर हमें अमेंडमेंट की बात हुई है, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है, फिर हम समझेंगे। The tax is required to be deducted as per the provisions of section 206AA। What is 206AA? If you remember, there is a section कि अगर आपने पैन नहीं प्रोवाइड किया है तो TDS would be deducted at a higher rate। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है कि क्योंकि हम एक साथ सारा टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली व्हाट वी डू, we deduct tax at every payment, right? When we are paying normal rent, that is 194I or contract, every payment we deduct tax if there is a liability to deduct tax. In this case it is not that the same। what do? They ask us to deduct the tax in total, last month के rent के साथ एक साथ deduct करो। So what used to happen, this I have always explained in the regular classes as well, that 20% जो होता है वो आपका 100% से ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर आपने साल भर का कैलकुलेट किया और हर महीने का 20% काटना है क्योंकि पैन अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो आपका 100 से ऊपर चला जाएगा। सो उसमें एक कंडीशन हुआ करती थी, ये देखो, सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल फॉर द लास्ट मंथ फॉर द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी एज द केस में बी। सेक्शन 206AA प्रोवाइड्स फॉर हायर डिडक्शन एंड फेलियर टू फर्निश पैन, ये एज इट इज है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इस सेक्शन में पहले 206AB सेक्शन का भी रेफरेंस होता था, ठीक है, 206AA 206AB दोनों के बारे में बात होती थी। आपके पास अगर पुरानी मॉड्यूल होगी तो आप उसमें देखिएगा, यहाँ पर से उन्होंने 206AB को अब हटा दिया है, मतलब नॉन फाइलर्स वाला जो एक सेक्शन था हमारा, इफ यू ऑल रिमेम्बर, उसका अब इससे कोई लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट ये याद रख लो, ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न नहीं भी फाइल किया है तो भी उसका इस सेक्शन के टीडीएस रिडक्शन से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जो हायर रेट लगती है वो इस सेक्शन के लिए नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए, टीडीएस ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, again this section 194O, there has been some changes, not much change, but they have actually given some kind of guidelines to us. So let us discuss all those guidelines, because what happened was, whenever, again as I told you, whenever new sections are introduced there are confusion, so for clearing over that confusion guidelines are issued। applicability on transactions carried through various exchanges, remove practical difficulties, it should not be applicable। 194O को उन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है ट्रांजैक्शंस एंड कमोडिटीज जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज से, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज से जो ट्रेड होती हैं उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट गेटवे, इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस द पेमेंट्स आर जनरली फैसिलिटेटेड बाय पेमेंट गेटवेज, है ना, हम लोग सब करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से सामान वामान खरीदने के बाद यूपीआई या ये वो किसी ना किसी गेटवे के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है ना, डायरेक्टली पेमेंट करने के बजाय। इट इज पॉसिबल that there may be applicability of 194O twice, that is once on the main e-commerce operator who is facilitating the sales
and once on the payment gateway who also happens to be e-commerce operator. जैसे अगर हम बात करें तो there are different payment gateways, वो आपको एक ऑप्शन एक ऑफ वो दे रहे हैं कि आप डायरेक्टली ई पेमेंट कर सकते हो, और वो एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज Amazon और आपके बैंक के बीच, है ना। अगर वो डायरेक्ट नहीं हो सकता तो वो एक गेटवे दे रहे हैं, तो ये भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ। तो यहाँ पर भी टीडीएस लग जाएगा, यहाँ पर भी टीडीएस लग जाएगा, ट्रांजेक्शन तो सेम ही है, आप सिर्फ पेमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो क्या बोला उन्होंने, टू इलस्ट्रेट अ बायर बाइज गुड्स वर्थ 1 लाख ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट XYZ, लेट अस से Amazon, he makes a payment of 1 lakh through digital platform of ABC, say for example your Paytm or anything. On these facts, liability to deduct tax under section O may fall on both XYZ and ABC. To remove this difficulty, उन्होंने बोल दिया if tax has been deducted by e-commerce operator on the same transaction, then payment gateway will not be required to deduct the tax. तो अगर इस पर ऑलरेडी Amazon के इसमें डिडक्ट हो चुका है तो फिर यहाँ पर आपको डिडक्ट नहीं करना है ना। आपको अंडरटेकिंग की जरूरत पड़ सकती है ताकि प्रूफ रहे अपने पास, तो एक ट्रांजेक्शन पे दो बार टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, ये उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है ना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। The next section that has been given is 194Q. Again, this section we all have discussed. More than 50 lakhs का अगर परचेज होता है तो उसके पेमेंट के टाइम पर 0.1% से टैक्स डिडक्ट करना है। Again, in this section there have been some kinds of clarifications or guidelines you can say, जो कि हमें दी गई हैं। तो बात कर लेते हैं what are the guidelines that have been issued. Various difficulties, इसमें से कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं है, तो हम सारी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी, कुछ अभी रिलीज हुई है, तो वील डिस्कस ऑल ऑफ देम टुगेदर। एडजस्टमेंट फॉर जीएसटी, वेरियस स्टेट लेवीज एंड टैक्सेस अदर देन जीएसटी, परचेज रिटर्न्स, इन सब चीजों का क्या एडजस्टमेंट होगा। Whenever in terms of agreement or contract, the component on GST comprised in the amount payable is indicated separately, tax shall be deducted at source on the amount paid without including GST. ये हमने पढ़ा है, I remember, because you can also find a separate video on this if you want. Otherwise मैं इसके साथ सारा ले ही रही हूँ, तो ये हमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, कुछ कुछ चीजें कुछ नहीं है, तो सारी एक साथ 194Q से रिलेटेड सारी चीजें हम एक साथ आज पढ़ लेंगे, ठीक है। Treatment of tax deduction on GST component included in the invoice in case of purchase which are not covered within the purview of GST but which are subject to VAT. तो क्या होगा, where tax is deducted at the time of credit of the amount and in the terms of agreement GST component is indicated separately, या फिर VAT CST जो भी है वो इंडिकेटेड है सेपरेटली, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट क्रेडिटेड, तो वो जीएसटी वैट एक्सक्लूड करके। तो अगर आपने 40,000 का माल खरीदा है, मतलब ऑब्वियसली अमाउंट शुड बी मोर देन 50 लाख, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड अगर उस पर 4,000 का टीडीएस है तो आप इस जीएसटी, तो इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। वे टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। अब देखो, जब पेमेंट बेसिस पे टैक्स डिडक्ट होता है, व्हाट हैपेंस, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जब आप एडवांस दे रहे हो किसी को खरीदने के लिए, तो आप उसमें जीएसटी कंपोनेंट अलग अलग नहीं देते हो, तो फिर आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अमाउंट दिया वो जीएसटी इंक्लूसिव हो सकता है, अभी नहीं पता, आगे इनवॉइस बनेगा तब पता चलेगा, तो अभी तो पूरे पे टैक्स डिडक्ट कर लो। परचेज रिटर्न, इफ द मनी इज रिफंडेड देन इट मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज, और अगर गुड्स रिप्लेस हो गया है तो फिर आपको कोई एडजस्टमेंट देने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका टीडीएस उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, है ना। कैन नॉन रेसिडेंट बी अ बायर अंडर 194Q? Provisions of 194Q shall not apply to a non-resident. Should tax be deducted when seller is a person whose income is exempt? The provisions would not apply on purchase of goods from a person whose person is exempt from Income Tax Act, जैसे कि आरबीआई वगैरह है, तो उस केस में आपका टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा। Should tax be deducted on advance payment? Yes, टैक्स लगेगा, बिकॉज आपका उन्होंने बोला है कि whichever is earlier, क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier, तो पेमेंट अगर जल्दी हुआ है तो टैक्स डिडक्ट होगा। इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन a buyer is required to have total sales of 10 crores in the previous year, तो पहले साल में आपका 194Q अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आप वो नहीं निकाल सकते हो, है ना, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वुड प्रोविजंस ऑफ 194Q अप्लाई टू बायर इफ टर्नओवर इज 10 crores और लेस? As regards whether the provisions of 194Q apply whose turnover exceeding 10 crore but total sales or gross receipts from turnover is 10 crore or less, it is clarified that for the purposes, buyer is required to have total sales from the business carried on by him exceeding the 10 crore limit.
during the financial year immediately. Hence, sales carried on by him must exceed 10 crore. His turnover from non-business activity is not to be counted for this purpose. Very very important to be kept in mind कि वो नॉन बिजनेस रिसिप्ट्स मिला के, मतलब बिजनेस रिसिप्ट्स अगर 8 करोड़ हो रही है और नॉन बिजनेस रिसिप्ट्स 3 करोड़ हो रही है, तो ये मिला करके 11 हो रहा है, तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा. Applicability of provisions in case of Department of Government not being a public sector corporation. As per 194Q, person shall be carrying out a business activity and the turnover should be more than 10 crore. Can Department of Government be a buyer? देखें, अगर गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है तो यस, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है तो नहीं. मतलब अलग से गवर्नमेंट के लिए कोई रूल नहीं है. जो 194Q में बायर के लिए कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो रही है, भले फिर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर वो फुलफिल हो रही है कि कमर्शियल एक्टिविटी है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हाँ टीडीएस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. कैन डिपार्टमेंट ऑफ state or central government be considered as seller for the purposes of section? ये no. Tax can be deducted under 194Q by the buyer. तो आपको सेलर नहीं माना जाएगा. ठीक है, चलिए. तो 194R मैंने अलग से एक पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, because 194R is a new section, तो I'll share that link along with this video, so you can totally go through it and refer that. उसमें मैंने सेक्शन प्लस इससे रिलेटेड जो भी सारे क्लेरिफिकेशंस वगैरह रिलीज किए गए हैं वो भी सारे साथ में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका उससे इजीली पूरा सेक्शन जो है वो कवर हो जाएगा. चलिए, now moving on to the next TDS provisions. Now the provisions that we are discussing in amendment is not related to any specific deduction, section of deduction. General कुछ provisions में changes हैं छोटे छोटे से. Interest liability, अगर हमें इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं ना, असेसी इन डिफॉल्ट में इंटरेस्ट लगता है, नॉन डिडक्शन नॉन पेमेंट 1%, 1.5% वाला. सो हाउएवर what the particular point has been added, where any order is made by assessing officer for the default, interest shall be paid by the person in accordance with such order. तो अगर कोई ऑर्डर आया है उसमें हमें पर्टिकुलर कोई प्रोविजन दिया है उन्होंने कि इस तरीके से पेमेंट करना है, तो फिर उसी के हिसाब से पेमेंट करना जरूरी हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. 206AB, इसमें मेन चेंज एक तो हमने बात करी 194IB भी ऐड हो गया है. ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि कौन से सेक्शंस पर 206AB नहीं लगेगा. अगेन टू जस्ट गिव यू अ रिविजन, 206AB इज द सेक्शन इन विच पर्सन, अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल किया है, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के ऊपर ये सेक्शन लाया गया था, तो आपको जो है टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर, ये इसमें बोला गया है. नॉट एप्लीकेबल में 194IB भी रहेगा, जो अभी हमने 194IB में बात करी है ना कि 206AB उसमें से हटा दिया गया है. अब यहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज जो आया है वो ये है कि स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हुई है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान में रखना. हमारे पीरियड से अभी में अगर हमने पहले पढ़ा हुआ है तो हमें और ज्यादा ध्यान देना है. अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो देन ऑब्वियसली आप यही डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो नो प्रॉब्लम. पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted for which the time limit has expired under 139(1) has expired. 139(1) is due date. Okay, 139(1) is ड्यू डेट है ना, बिलेटेड और वो सब नहीं चलेगा. ओरिजिनल ड्यू डेट मतलब रेगुलर हमारे फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो चली गई है. और एग्रीगेट टैक्स डिडक्टेड इन हिज केसेस 50% और मोर, टीडीएस और टीसीएस जोड़ करके 50,000 या उससे ज्यादा है. अब इन्होंने किया क्या है, 1 साल कर दिया है, पहले 2 साल हुआ करता था. ठीक है, तो अभी एक चीज और हो गई कि ज्यादा लोग आ गए इसमें, मतलब ज्यादा लोग 206AB में कवर हो गए कि भैया एक ही साल देखेंगे हम, हमने तुमने अगर तुम्हारा टैक्स कटा है 50,000 के ऊपर या 50,000 और तुमने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो तुमको 206AB के हिसाब से 5% से टैक्स डिडक्ट, मतलब हायर रेट से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा. However, the specified person does not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. तो ये चीज तो वहीं की वहीं है, बस यहाँ पर एक मेजर चेंज हुआ है कि 2 की जगह उन्होंने 1 साल कर दिया, जो बहुत बड़ा चेंज है. 206C1G to a non-resident buyer not having a permanent establishment, हमारा ऑथोराइज डीलर वाला सेक्शन है टीसीएस का 206C1G है ना.
Tax is collectible by an authorized dealers who receives amount under LRS, that is liberalized remittance scheme, for overseas remittance being a person remitting some out of India, and seller of an overseas tour package who receives any amount from the buyer who buys the package. Cases where no tax has to be deducted, so there has been some kind of exceptions. No TCS is required when the sum has been collected by the seller. Buyer is liable अगर tax deduction के लिए, तो TCS नहीं लगेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और इनके साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं तो नहीं लगेगा. यहाँ पर एक चीज उन्होंने छोटी सी डाली है. अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज notified that the provisions would not be applicable to a person who is a non-resident and who does not have a permanent establishment in India. इनके ऊपर भी TCS 2061G, that is foreign payments, foreign remittance पर जो TCS लगता है वो applicable नहीं होगा. Now moving on to the section which is quite like 194Q, है ना. मैंने हमेशा से जब भी आपको पढ़ाया है ये बताया है 2061H 194Q ये पहले आया था, ये बाद में आया है. पहले TCS का प्रोविजन आया, फिर उन्होंने बोला TDS, अगर TDS लग जाएगा तो ये नहीं लगेगा. तो बेसिकली ये हमने पढ़ा हुआ है. अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग. 2061H फटाफट से देख लेते हैं. वही है बात, सेलर के ऊपर लायबिलिटी आती है, 50 लाख के ऊपर का परचेज है, 10 करोड़, बाकी सारी चीजें सिमिलर है काफी हद तक. 0.1% का रेट भी सेम है. बायर की डेफिनेशन दे रखी है हमें, सेलर की डेफिनेशन दे रखी है. यहाँ पर हमको पावर ऑफ गाइडलाइन, पावर ऑफ CBDT to issue guidelines. So again we are supposed to see the guidelines. Now there are some guidelines that are old, so that we have already discussed, but because those guidelines will form a way to understand the whole topic, so that is why I'm discussing it again. Applicability of transactions carried through various exchanges, वही जो अभी हमने 194Q में भी बात करी कि उस केस में ये applicable नहीं होगा. अब मोटर व्हीकल हम 2061F में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, 10 लाख के ऊपर वाला केस. तो अगर कोई गाड़ी है जो 50 लाख के ऊपर है तो ऑब्वियसली उसमें 2061F तो लग ही रहा है, तो क्या 1H भी लगेगा. सेक्शन 2061H एक्सक्लूड्स गुड्स कवर्ड अंडर 2061F. तो अगर आप वहां पर कवर हो रहे हो तो आपके ऊपर मोटर व्हीकल वाला ही सेक्शन लगेगा, जनरल वाले सेक्शन में आप कवर नहीं होगे. स्कोप ऑफ 106CH and 1F are different. 1F is based on a single sale of motor vehicle. 2061H is for receipt above 50 lakhs. Hence, in order to remove difficulty, it is clarified that receipt of sales consideration from a dealer would be subject to TCS if such sales are not subject to TCS under 2061F. Very clearly provided. If there is a question that asks you about motor vehicle, पहले आपको 2061F देखना है. अगर ये नहीं लग रहा तो फिर 2061H आप देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे. इन केस ऑफ सेल टू कंज्यूमर, receipt of sale of 10 lakh or less would be subjected to TCS if the receipt is exceeding 50 lakhs during the previous year, है ना. तो मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल तो भले ही 10 लाख के से कम की है, क्या बोला है देखो, सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू ऑफ लेस देन 10 lakhs वुड बी सब्जेक्टेड टू TCS अगर टोटल रिसिट जो है वो 50 लाख के ऊपर हो गई. समझ रहे हो आप, है ना. तो इंडिविजुअल रिसिट देखनी है 2061F में, और यहाँ पर आपको एग्रीगेट देखना होता है. In case of sale to consumer, receipt of sales consideration of the value exceeding 10 lakhs would not be subject to TCS under 2061H, क्योंकि उसमें आपका 2061F का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. सेल्स रिटर्न वाला चीज सेम वैसा ही है 194Q जैसा कि नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, इनडायरेक्ट GST इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन कलेक्शन. ठीक है, सिर्फ सेल्स कंसिडरेशन पर ही किया जाएगा. Fuel supplied to non-resident airlines 2061H shall not apply on these particular transactions. Moving on to cross applications of section 194O, 2061H and 194Q. क्रॉस एप्लीकेशंस जो भी हैं तो उनके क्या केसेस होंगे. अगेन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Clarification on how section 194O, 2061H and 194Q shall apply. 194O shall not liable to deduct tax at source under provisions under the second provisions of this shall not apply if the buyer is liable to deduct. 194Q the provisions would not apply on which tax deductible under any provisions of act or is collectible other than 2061H. तो अगर हम सबको साथ में पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है. Conjoint reading. If tax has been deducted by e-commerce operator on a transaction under 194O, it shall not be subjected to transaction under 194Q.
2061H प्रोवाइड्स एक्सेम्पशन, तो अगर 2061H और 194Q साथ में एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर उसमें 194Q लगेगा, 2061H एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इफ इट इज कवर्ड बोथ 194O एज वेल एज Q, तो फिर 194O लगेगा, Q नहीं लगेगा। ठीक है, if a transaction is both under the purview of 2194Q as well as 2061H, तो ये हम पढ़ चुके हैं, 2061H नहीं लग करके 194Q लगेगा। If there is an exemption provided, 194Q, since 194Q does not apply in respect of transactions where tax is collectible, 2061H requires collection of tax at source in respect of sales other than goods which have been covered under 11F. In accordance with ye, tax is not required to be collected in case of a resident who furnishes declaration that goods are to be utilized for the purpose of manufacturing. It is clarified that the provisions of 194Q will apply in such cases covered under 2061A, and the buyer is liable to deduct tax if the conditions. देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारी सेक्शन और लैंग्वेजेस और ये सब पढ़ करके ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। सिंपल हिसाब समझो, अगर 2061H और 194Q दोनों अप्लाई हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, मतलब इसकी भी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, इसकी भी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो फिर सिंपल सी बात है, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा केस है जिस पर 2061H लगेगा ही नहीं, 2061H के बाहर है, परव्यू के ही बाहर है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 194Q आपको डिडक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। बात समझ आई, बहुत ही सिंपल सा केस है। ज्यादा हमें सेक्शन नंबर्स और ये सब पढ़ करके अगर कंफ्यूजन होता है, इट्स इजी कि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। और एक बात और ध्यान रखो, ये बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सेक्शंस याद करना है कि नहीं, और ये 2061H और ये सब जो सेक्शंस है, बहुत बार तो क्या होता है, कुछ कुछ सेक्शंस इतने कॉमन हो जाते हैं कि हम क्वेश्चंस करते करते हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं सेक्शन नंबर्स। लेकिन अगर आप आंसर लिखते समय सेक्शन नंबर नहीं लिख रहे हो तो देयर इज नो इशू, ओके, इट इज ओके इफ यू डोंट राइट अ सेक्शन, बट इफ यू आर राइटिंग मेक श्योर इट इज करेक्ट। डू नॉट राइट 206C, यार फिर क्या था, 1 याद नहीं आ रहा, यार शायद जी था, शायद एच था, जो जी लिख देते हैं। दिस यू शुड नॉट डू। इफ यू आर 100% श्योर कि हाँ 50 लाख वाला जो सेक्शन है दैट इज 2061H, देन ओनली राइट इट डाउन, अदरवाइज डोंट राइट इट डाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हायर रेट फॉर TCS 206A, अगेन यहाँ पर भी वही वाला चीज है, स्पेसिफाइड पर्सन नॉन फाइलर्स का केस जो हमने वहां पर पढ़ा 206AB में, कि 2 साल की जगह पर क्या कर दिया है, 1 साल का केस कर दिया है। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट 234A, 234A सेक्शन क्या बोलता है, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो, लेट रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से उसके साथ क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहां पर अब उन्होंने बोल दिया है रिटर्न असेसमेंट ईयर 139A4 और 139.8A, हम सब जानते हैं 139.8A is updated return. I have already uploaded a video specifically focusing on 139.8A in which I have also solved a numerical example. Do go through it. तो बस एक चीज ऐड करिए कि अगर 139.8A का केस है तो भी वो ड्यू डेट से तो बाद में ही है, तो आपको उसके साथ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A भी पे करना पड़ेगा। सिमिलरली उन्होंने वो करा है, चेंज करा है 234B वाले केस में भी। 234B के केस में भी उन्होंने यही बोला है कि आपका जो 234B है वो अब अपडेटेड रिटर्न के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट होगा। मतलब अपडेटेड रिटर्न अगर आप पे कर रहे हो तो उस वाले अमाउंट पर भी क्या बोला है, देखो आपको वो देना पड़ेगा। सो टैक्स ऑन टोटल इनकम एज डिटरमाइंड वुड नॉट इंक्लूड द एडिशनल इनकम टैक्स इफ एनी पेड अंडर 140B। 140B अगेन इज रिलेटेड टू योर अपडेटेड रिटर्न, है ना। जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो यू विल गेट दैट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा बिकॉज दैट हैज बीन अपलोडेड बाय मी। सो अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर अपना जो 143(1) का टैक्स है वहां पर वो 140B का टैक्स इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो अलग से है, वो अपडेटेड रिटर्न का है। टैक्स ऑन टोटल इनकम वुड नॉट इंक्लूड द एडिशनल टैक्स पेएबल अंडर 140B। सो यू हैव टू कंप्यूट सेपरेटली, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा दैट हैज टू बी concluded separately. Now moving on to the next amendment, which is again a very specific, very small amendment, but important for your theoretical part, quite important for your theoretical part, is that there have been some additional conditions requiring the filing of your income tax return. पहले हम सब जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वही सब पहले तो रूल्स देखते हैं हम, है ना, किस किस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, तो हम यही देखते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है,
और वो सब कंडीशंस तो होती ही हैं। फिर उसमें एडिशन हुए थे, मतलब आप लोगों ने शायद अमेंडेड ही पढ़ा होगा, बट ये जो सारे पॉइंट्स थे ये अमेंडमेंट्स थे कि अगर आपने 1 करोड़ के ऊपर पैसा डिपॉजिट किया है या आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, तो भले ही आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, लेकिन अगर आपने ये ट्रांजेक्शन करे हैं तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता था। ऐसे ही अब और एडिशनल कंडीशंस को ऐड कर दिया गया है। सो क्या कहा है देखो, इंसर्टेड रूल 12AB stating that conditions wherein any person other than a company who is not required to furnish under 139(1), मतलब जो सारे existing provisions हैं उनके हिसाब से अगर आपके ऊपर 139(1) में टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी नहीं भी आती है, तो भी you have to file income tax return in the manner on or before the due date if टोटल सेल्स टर्नओवर रिसिट्स एक्सीड 60 लाख। मतलब आपका बाकी सब कम है, बाकी सारे कंडीशंस आप नहीं फुलफिल कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी सेल 60 लाख से ज्यादा हो गई या ग्रॉस रिसिट्स इन प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख और aggregate of tax deducted at source and collected TDS plus TCS during the previous year is 25,000 or more in case of a resident individual who is aged more than or equal to 60 years, दिस लिमिट विल बी 50,000 और मोर, तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा मैंडेटरी। और डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट इज इन एग्रीगेट 50 lakhs और मोर। तो ये 4 और कंडीशन अब आपको याद रखनी है कि अगर ये फुलफिल हो जाती है तो भी रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा मैंडेटरी। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पूरा लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में और बीच में कहीं पर एक लाइन लिख दी कि द टोटल सेल्स वर ₹70 lakhs, ठीक है। या आपका जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है उसमें आपको लिखा हुआ है कि सेल्स फ्रॉम बिजनेस या रिसिप्ट्स इज 70 lakhs, बाकी एक्सपेंसेस और सब कुछ दिया हुआ है, अपन ने पूरा सॉल्व कर दिया और अपन को पूछा है कि व्हाट इज द कैलकुलेट द टैक्स और ये सब कुछ एंड इज देयर एनी लायबिलिटी टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि हम ये पॉइंट मिस आउट कर जाएंगे, तो ये बहुत ध्यान रखना, बहुत सटल तरीके से पूछेंगे। वो हो भी सकता है वो डायरेक्टली लिखे नहीं कि द रिसिट्स आर इतना इतना, ताकि हमारा ध्यान भी जाए। वो क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट डाल सकते हैं कि डिपॉजिट वाज 50 lakhs या 52 lakhs, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो भी अब आपको रिटर्न फाइल करना जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। Moving on to the last amendment, that is some again procedural changes in the provisions relating to PAN and Aadhaar. So let us see. Persons mandatory to apply for allotment of PAN. There are some conditions in which you have to compulsorily apply for PAN. Certain persons who have not been allotted a PAN to apply to the assessing officer. Further, for widening the tax base, every person who has not been allotted a PAN and intends to enter into transactions is required to apply to allotment of PAN। मतलब आपके ऊपर वैसे भले ही PAN की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इन ट्रांजेक्शंस में आते हो तो आपको PAN लेना कंपलसरी हो जाएगा। So inserted with effect from expiry of 15 days from 10th of May to prescribe the following transactions. Every person who intends to deposit cash in 1 or more accounts with a banking company or cooperative bank or post office, if the cash deposit is more 20 lakhs or more, at least 7 days before the deposit you have to apply. Every person who intends to withdraw cash, again 20 lakhs or more, 7 days before withdraw आपको करना पड़ेगा। Any person who intends to open a current account or cash credit, अगर आपको ओपन करना है एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट टू विच ही इंटेंड्स टू ओपन एन अकाउंट। कोटेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार नंबर, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पर आपको कोट करने पड़ते हैं आधार नंबर या पैन नंबर, तो वहां पर भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, देखें अकॉर्डिंगली। रूल 1114 BB हैज बीन इंसर्टेड with effect from expiry of 60 days from 10th of May 2022 to prescribe that every person has to, at the time of entering into a transaction in the table given below, has to ensure that the said number has been quoted, that is your PAN और आधार। और आजकल PAN आधार लिंकिंग की भी प्रोसीजर पूरी वो हो चुकी है। इन द मेनी ऑर्गेनाइजेशंस तो वो लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आप लोन लेने जा रहे हो और आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो बैंक स्ट्रेट अवे दे रिफ्यूज कि भैया नहीं, आप पहले लिंक कर करके आओ फिर हम आपको लोन देंगे। सो बिकॉज अब एवरीथिंग इज लिंक्ड। पैन में क्या होता था, पैन ऑथेंटिकेशन में बहुत दिक्कत थी। जैसे जब पैन बनता है तो यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी काइंड ऑफ unique identification like your thumbprint or retina scan or anything like that. So people used to have multiple PAN numbers and they used to diversify their income and evade tax and all.
आधार में वो चीज नहीं है, तो इसीलिए अब उन्होंने क्या कर दिया, पैन और आधार, और जो पैन और आधार लिंक्ड नहीं होंगे वो पैन सारे इनऑपरेटिव हो जाएंगे। सो आप लोग भी इंश्योर करें, आप लोगों के अगर पैन हैं, मेक श्योर यू हैव लिंक्ड देम, बिकॉज आप लोग रिटर्न्स अभी फाइल नहीं कर रहे होंगे, अगर हो सकता है आपको नहीं पता हो। मेक श्योर यू हैव लिंक्ड देम। एंड अब से लिंकिंग में फीस भी है, उन्होंने फीस कलेक्ट करना स्टार्ट करी है, बिकॉज पहले उन्होंने बहुत टाइम दिया, ड्यू डेट एक्सटेंड करते गए, हम पढ़ ही रहे हैं अमेंडमेंट्स में हर बार, but now they have started to charge a fees, but it is something which is to be done very urgently and it is very important to be done. So what have they given? कब आपको कोट करना है, वही जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो आपको पैन लेना भी है और फिर कोट करना है। कैश विथड्रॉल होगा अगर तो, और ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट। कोटिंग ऑफ पैन इज हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड इन केस वेयर द पर्सन डिपॉजिटिंग और विथड्रॉइंग और ओपनिंग इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ कंसुलर ऑफिस, तो ये वाले केस में आपको नहीं देना पड़ेगा। अगेन मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार, एवरी पर्सन इज टू रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली कोट योर आधार फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। तो अब से जो नए पैन नंबर आते हैं उसमें तो आधार नंबर आपको वैसे ही कोट करना ही पड़ता है। तो जो नए लोगों के पैन बने होंगे उनको तो ऑटोमेटिकली उनका लिंक ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपने साथ में डाल ही दिया, और रिटर्न ऑफ इनकम में भी देना आपसे मैंडेटरी हो चुका है कब से ही, खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जब रिटर्न ऑफ इनकम में देना मैंडेटरी हो चुका है। अगर एनरोलमेंट आईडी, अभी आधार नंबर नहीं आया है तो एनरोलमेंट आईडी आपको देना है। इंटीमेशन ऑफ टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑन और बिफोर 31st of March, यू हैव टू इंटीमेट। अगर आपके पास पैन पहले से आ चुका था, जैसे हम लोगों के पैन पहले से बन चुके थे, आधार कार्ड बाद में बने हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस, या वाइस वर्सा की बना पहले है लेकिन जब हमने पैन अप्लाई किया तब आधार कार्ड का आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, तो लिंक्ड नहीं है, तो अलग से आपको क्या करना है, लिंकिंग हैज टू बी डन। Being it is clarified that it is mandatory to quote and link Aadhaar while filing your income tax return. If you fail, this is very important. If you fail to intimate your Aadhaar card for your PAN at the time of subsequent to the prescribed authority, such person would be liable to pay। जून तक 500 रुपए था, अब 1000 रुपए हो गया है, तो अभी हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं जून से। However, if a person fails to link on or before 31st of March 2022, his PAN shall become inoperative under the prescribed manner. So this has to be done. Now they have extended again, these dates are being extended so as to remove जेन्युइन डिफिकल्टीज। बिकॉज हो क्या रहा था, जैसे हमने ड्यू डेट लगाई लेकिन बहुत सारे लोगों के पैन जिनके बहुत पुराने पुराने बने हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हमारे, उन लोगों के टाइम पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता था, देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारे आधार कार्ड ऐसे हैं आज भी जिन पे सिर्फ डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है, सो लोगों को लिंकिंग में बहुत सारी जेन्युइन डिफिकल्टीज आ रही थी। सो उन्होंने क्या कर दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस को आगे खींच दिया है। देखो, where a person whose PAN has become inoperative is required to furnish his PAN under the act, it shall be deemed that he has not furnished his PAN, as the case may be, he would be liable for all the consequences. However, these consequences would be applicable from 1st of April 2023। तो अभी भी हमारे पास थोड़ा समय बाकी है कि हम हमारे पैन को इनऑपरेटिव होने से बचा सकते, मतलब वो वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकते हैं। वेयर सच पर्सन हु हैज नॉट इंटीमेटेड हिज आधार नंबर ऑन और बिफोर 31st of March, आफ्टर हिज पैन वुड बिकम ऑपरेटिव आफ्टर पेमेंट ऑफ सच फीस। तो हम फीस पे कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। Rule 114AAA provides that if PAN of a person has become inoperative, he will not be able to furnish। क्या होगा अगर पैन इनऑपरेटिव हुआ, तो होगा क्या, से बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम बोलते हैं क्लाइंट्स को कि यार पैन आपका सर इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो लिंक करने वाली चीज, तो दे वर लाइक व्हाट वुड हैपन इफ पैन वुड बिकम इनऑपरेटिव। सो दैट इज बेसिकली यू, it would be treated as if you do not have a PAN. That means you would not be able to file your returns would not be processed, refunds cannot be issued। ये बताना सबसे अच्छी बात है to the client so that like अरे यार रिफंड अटक जाएगा, तो हाँ भैया चलो पैन का काम तो जरूरी है। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड, टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट हायर रेट, और उसका रिफंड भी नहीं ले पाओगे। इन एडिशन टू द अबव, टैक्स पेयर मे फेस डिफिकल्टीज एट वेरियस फोरा लाइक बैंक्स वगैरह, जहां पर आपका पैन जैसे ही वो लोग एंटर करेंगे वहां बोलेंगे इनऑपरेटिव, तो आपके अकाउंट्स, केवाईसीज, लोन्स, इन सब चीजों में आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इट इज क्लैरिफाइड दैट द इम्पैक्ट ऑफ रूल 11148882 would become it to effect from 1st of April, and the period from 1st of April to 31st of March 23 would be the period during which the 114882 would not have its negative consequences। मतलब आप ये सब भर सकते हो लेकिन आपको फीस तो पे करनी ही पड़ेगी जो लागू हो चुकी है। मतलब आपका 1000 रुपए का चालान भरता है, अब अभी मैं जितने भी लोगों के लिंक कर रही हूँ 1000 रुपए का चालान भरना पड़ रहा है,
क्योंकि लोग बैठे रहते हैं ना जब तक आखिरी की आखिरी तारीख नहीं आ जाती। प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, तो ये हमारा वैसा ही है कि किनके ऊपर ये वाला प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिविजुअल हु डज नॉट possess द आधार एंड इज residing in Assam, Jammu Kashmir, Meghalaya, non-resident, age of 80 years or more, and who is not citizen of India, then in that case these provisions would not be applicable. So these are the amendments that have been given for our inter-syllabus. Obviously, because these are part of inter-syllabus, these are automatically a part of your final syllabus as well. So ये videos में हमने जो बात करी वो हमारे इंटर और फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं सारे अमेंडमेंट्स। सिर्फ फाइनल के सिलेबस में जो सारे चेंजेस आए हैं दैट आई विल बी रिलीजिंग इन अ सेपरेट वीडियो, सो यू कैन वॉच बोथ ऑफ देम। So with this we complete all the amendments for two very important points, for two very important new sections that have been inserted, that is 139(8)A and 194R. I have given separate videos, so that links also I would be sharing along with this. सो आप उनको भी साथ में देखें क्योंकि वो नए सेक्शंस हैं ऑल टुगेदर, तो मैंने सोचा दैट वुड बी बेटर इफ इट इज अ वेरी सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑल टू गो थ्रू दिस, because that is a new thing. Along with illustrations, along with questions, I have given a separate detailed video along with it. So in सारे cases में amendments में उन sections में कहीं पर भी if you are having any kind of issues, doubts, feel free to discuss. All the best for your examinations.